Hello everyone, welcome back to my channel. In previous video we have studied about cell chapter part 1 of that chapter class 8 and ये second part है उसका cell organelle. So in this particular video we will study about different kind of cell organelles. So first we should know the definition of cell organelle. So let's see. The tiny component present inside the cell सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज सेल ऑर्गेनेल. वो हर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर मिलते हैं उसके साइटोप्लाज्म में तैरते हुए उनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल कहते हैं. अगर हम सेल ऑर्गेनेल की बात करें, इफ़ दिस इज़ अ सेल तो इसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस मिलता है सेंटर में, और ये है न्यूक्लियस, और ये है व्हाट तुम्हारा, अगर सेल प्लांट का है तो यहाँ पे सेल वॉल मिलेगा, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, और अगर एनिमल का है तो क्या होगा? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा. तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो भी है और न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, इन फ्लूइड्स को हम कहते हैं क्या है? इन फ्लूइड्स को हम कहते हैं कि ये जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है. और इस साइटोप्लाज्म में हमारे छोटे 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 जो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. In this particular section we have to know that how many types of cell organelles are present inside the cytoplasm of the cell. So what does it say? There are different kind of cell organelle present inside the cytoplasm of the cell. They are as follow: nucleus, ribosome, mitochondria, Golgi body, vacuole, plastid, lysosome, cytosome, endoplasmic reticulum. ये कुछ cell type of cell organelles हैं जो cell के अंदर present होते हैं. और भी now we are going to read each one of them one by one. So first cell organelle that we are going to study about is ribosome. Okay, so let's get started. So the first point, what does it says? They are minute granule like structure. Okay, which type of structure they are? Granule like structure, and they are very 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 small, minute in structure. They are either attached to the endoplasmic reticulum or freely found in the cytoplasm. या तो ये सबसे पहले इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी छोटा होता है, दानेदार होता है, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए पाए जाएंगे या फिर ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलते हैं. देयर फंक्शन इज़ टू सिंथेसाइज प्रोटीन. इनका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. और इसको हम इस अदर लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सो वन क्वेश्चन आस्क दैट वेयर डू protein synthesis takes place? Protein synthesis takes place. So what your answer will be? Inside ribosome. और क्वेश्चन ये भी बना के पूछ सकता है कि in which cell organelle the protein synthesis takes place. तो क्या होगा आंसर? राइबोसोम होगा. Okay, so now the next cell organelle, that is mitochondria. So in this particular section we will study about mitochondria. So mitochondria are tiny oval shaped organelle bounded by, this is the special thing that you have to learn, okay, bounded by double membrane structure. double membrane. So ये क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो उसमें एक आ गया माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, now the next thing is they are present in cytoplasm, of course, because they are cell organelle. They are present in the cytoplasm of the cell. In eukaryotic cell, okay, there are two type of cell organelles: eukaryotic and prokaryotic cell organelles. Okay, wait, let me tell you what they are. So here I am writing prokaryotic cell, and in this side eukaryotic cell. So the main difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell are, in prokaryotic cell there is not defined nucleus, or not well defined nucleus. In eukaryotic cell there is presence of well defined, please excuse my handwriting, well defined nucleus. So this is the main difference between eukaryotic and prokaryotic cell. Or you can say that जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है. और एक सेल जिसमें न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी लगे हुए, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है. दे कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. ओके, दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एंड जो भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको ब्लू से अंडरलाइन कर देती हूँ.
तो दे कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मैंने लिखा, ओन लिखना मैं भूल गई हूँ, तो ओन जेनेटिक मटेरियल एंड मेनी एंजाइम्स. सो देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट हियर. फर्स्ट one is they are bounded by double membrane, second one is they have their own genetic material and they contain so many enzymes. And their function is, okay, their function is दे कन्वर्ट द फूड इनटू यूजेबल एनर्जी. जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज powerhouse of the cell. This is also the most important thing because the question asked that so many times that which cell organelle is known as powerhouse of the cell. तो आप याद रखना powerhouse of the cell हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्योंकि यही है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है, सेल को एनर्जी देता है. जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदल के और हमारी हर सेल को एनर्जी देने का काम जो है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है. ओके, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. Now let's go to the next cell organelle. So our next cell organelle is Golgi body. Okay, so let's get started. These are sac-like membranous structure found near the nucleus. ये जो है वो बोरी की तरह दिखने वाले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं. ठीक है, और दूसरा इनका फंक्शन ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में, सेल के अंदर ले जाना और सेल के बाहर ले जाना. जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला पॉइंट है कि ये कॉम्प्लेक्स फोल्डेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब है. ठीक है, एक ट्यूब है, देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है, ये इतने सारे ऐसे करके फोल्ड्स प्रेजेंट है ना. तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फोल्ड ऑफ नेटवर्क मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होता है ट्यूब के फॉर्म में जो कनेक्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं ब्लू से मार्क करती हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, कनेक्ट करता है. अब आप देख लो ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस. इसका जो मेम्ब्रेन है इससे देखो यहाँ पे कनेक्टेड है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. और यहाँ जो सेल के आउटर मोस्ट में जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने का भी काम करता है और ये मूवमेंट करने में मदद करता है सब्सटेंस का, सेल के अंदर ही अंदर, सेल के बाहर नहीं. सेल के अंदर और बाहर कराने का काम गोल्गी बॉडी का था. सेल के अंदर ही अंदर सब्सटेंस का मूवमेंट कराने का काम किसका है, ER का, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम. ओके, सो अबाउट लाइसोसोम, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये भी सैक लाइक बोरी की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर ही हैं जिसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे कंटेन डाइजेस्टिव जूस which help in breaking down of various worn out cytoplasmic part by digesting them. इनके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो क्या करते हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक चीज़ें जो हैं साइटोप्लाज्म में, वो सारी चीज़ें जो ख़राब हैं सेल के अंदर, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. इनके पास वैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और कई बार क्या होता है कि ये खुद के सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. येस, lysosome is a cell organelle that is also known as suicidal bag of the cell. Why? Because they have digestive juice which can digest their own cell also. खुद के ही सेल को ख़त्म कर देते हैं कई बार, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं. तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. सो इट्स लाइसोसोम. नाउ आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज centrosome. Okay, so about centrosome, they are minute body present only inside the animal cell. Okay, they are present only inside the animal cell. plant cell में नहीं मिलता ये centrosome, ये सिर्फ animal के सेल में मिलता है और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिविजन कराने में. जब आप आगे जाओगे आगे की क्लास में तो आपको सेल डिविजन के बारे में पढ़ना है, सेल कैसे डिवाइड होता है, तो उसमें मदद करता है centrosome. Now the next cell organelle is vacuole. So about vacuole, these are present in plant and only in some animal. जनरली ये प्लांट में मिलता है, एनिमल में ये कम मिलता है और ये भरा हुआ होता है कुछ फ्लूइड, फूड वेस्ट, पिगमेंट्स और कुछ अलग अलग सब्सटेंस से. और हाँ, जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उनमें एक ही बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि जो यंग प्लांट सेल होते हैं उनमें कई छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं. ओके, सो सपोज दिस इज़ द प्लांट सेल. प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस हल्का नीचे की तरफ शिफ्ट किया हुआ होता है, जबकि अगर एनिमल सेल की बात करो, अगर इसमें देखा जाए तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और अगर कहीं तुम्हें साइड में देखने को मिलेगा तो छोटा मोटा वैक्यूल देखने को मिल जाएगा. एक और चीज़ जो तुम्हें बताना था वो ये था
कि प्लांट सेल में भी अगर मैच्योर प्लांट सेल है तो उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल देखने मिलेगा, जबकि अगर मैच्योर प्लांट सेल नहीं, यंग प्लांट सेल है, तो उसमें कई सारे ऐसे वैक्यूल्स छोटे छोटे देखने को मिलते हैं. Okay, now our next cell organelle is plastid. They are found in the cytoplasm of plant cell only. Okay, of course, plastid एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है. और हाँ, ये अलग अलग रंगों के होते हैं और रंगों के बेसिस पे इनको 3 भाग में बांटा गया है. 3 टाइप्स के होते हैं ये. द फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मिलता है, जिसको हमने बचपन में पढ़ा है, क्लोरोफिल कहते हैं, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को. फिर है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरफुल प्लास्टिड होता है जो कि अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स में. ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड है जिसका काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगी. एंड आई होप you are getting it very well. And if you like the video, then please do like it and share it among your friends, whoever studies from class 6 to 12, जो भी अगर बायो सेक्शन में हैं या फिर 6, 7, 8 में, उनको आप शेयर करो. Subscribe my channel if you have not subscribed yet, and hit the bell icon for the further notification. Thank you.